ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਰਦਾਸ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰਿ ਲੋਕ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਰਬਸ ਸਭ ਅਰਪਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਝੋਕ। ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰਿ ਲੋਕ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਰਬਸ ਸਭ ਅਰਪਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਝੋਕ। ਰਹਾਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਭਏ ਨਿਰਭਿਖਈ। ਪਾਏ ਹੈ ਸਗਲੇ ਥੋਕ। ਆਨ ਬਸਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੁਐ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਆਲੋਕ। ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ। ਜਿਉ ਕੁਸ਼ਟੀ ਤਨ ਜੋਕ। ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ। ਦੀਨੋ ਇਹ ਪਰਲੋਕ। ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ। ਜਿਉ ਕੁਸ਼ਟੀ ਤਨ ਜੋਕ। ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ। ਦੀਨੋ ਇਹ ਪਰਲੋਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਖੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ
ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ, ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਮੌਤਬੇਰ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਹੋਰ तमाम ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ 12 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨੇ ਨੇ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਉਹ ਜੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾਈ, ਚੜਾਈ, ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਾਰ ਬਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਹਾਏ ਸ਼ਿਆਰੀ ਗੱਗੇ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਦਲੌਂਕੜ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਤਿਆਦ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
भाई साहब कहन लगे ख्याल करना कई बारी आकार वड्डा हुंदा कीमत कोई नहीं हुंदी, कई बार आकार बिल्कुल ही ना मात्र हुंदा कीमत का अंदाजा ही कोई नहीं हुंदा। वो कहंदे जी ये किवें हो सकदा है, ये नहीं हो सकता। जदों कोई कहे भी ये नहीं हो सकता फिर सानू एग्जाम्पल देनी पैंदी है, लॉजिक देना पैंदा है। फिर भाई साहब ने 3 लॉजिक दिते। भाई साहब कहन लगे भी जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई दे, हीरा रूहे जमीन ते इदू कीमती तो कोई चीज है नहीं। जे मैं भुलदा नहीं तो एक वर्ल्ड वार का कारण भी कोहिनूर हीरा बनया सी। गल उतों चुनचनी छिड़ी सी, फिर अगां वध गई सी। जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तो फिर ये ब्रिटिश सल्तनत लै आई सी। मूल रूप चो एक भेडां चारन वाले आजड़ी नूं लभा सी, तो चमकदा सी, वो लै आया। फिर अगे यात्रा करदा करदा रूहे जमीन ते हीरे नालों कीमती कुछ नहीं गा, सब तो कीमती है। पर आकार कितना हुंदा है, छोटा जिहा। वो हीरा उन्होंने इंग्लैंड रखिया है। जे मैं भुलदा नहीं तो अज की तरीक 10 पाउंड टिकट है उन्होंने वेखण दी, म्यूजियम च रखिया है। हाँ जी दसो की काम है जी, कोहिनूर हीरा देखना, वो कहते 10 पाउंड दिओ टिकट देने, फिर तुसी देखोगे। हुण उहदी कीमत कितनी अनुमान लाओ बई कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर तो उन्होंने वेखण वास्ते जिहड़ा वो चार्ज ही वसूल कर चुके हैं, तो कीमत तो उहदी कोई अता ही नहीं कर सकता। भाई साहब कहते भी हीरा वेखण नूं छोटा जिहा हुंदा है, पर जे उहदी कीमत की गल करिए तो फिर वो कीमत उहदी बहुत ज़्यादा होंदी है। हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, तनक कहते ने ब्रिज भाषा च बिल्कुल नगूने जैनू, छोटे जैनू। कहते जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल कीए ते दमकन भरत भंडार जी। पंडा बच जांदियां ने सरमाए दियां। जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोए से बिबद करे बिरख बथार जी। दूजी एग्जाम्पल भाई साहब कहते भी बोड़ का बीज तुसी हथ च फड़ के वेखो, कमजोर निगाह वाले नूं ते शायद शीशे नाल वेखना पवे, बड़ा बरीक हुंदा है, बड़ा छोटा हुंदा है। पर जदों उहदे चों पेड़ निकल आवे फिर पूरा पिंड उहदी छावें बैठ सकदा है। बीज छोटा है, पेड़ विचों दरखत है बहुत विशाल निकलता है। इसलिए किसी का आकार वेख के ना समझ लेना भी ये छोटा है तो मैं वड्डा वां। आकार तो हाथी का बहुत वड्डा हुंदा है, शेर नूं वेख के पसीने छुट जाते हैं। जदों पिछले पासों तरक मार के उत्ते चढ़ के रीढ़ की हड्डी ते चक मारदा, चीखां कढ़ा दिंदा। आकार की है शेर का, उहदे सामने कुछ भी नहीं। बट बीज बोड़ का बीज अत सूखम स्वरूप होत, बड़ा बरीक जिहा हुंदा है। बोए से बीजण तो बाद बिरख होए बिबद बिथार जी, बड़े विस्तार पूर्वक उहदे टाण टाणियां शाखा बहुत फैल जाते हैं। बोड़ दे ते इस तरह के भी पेड़ ने पंजाब दे विच जिहड़े 2-2 3-3 4-4 किलियां विच फैल गए। हेठां सपोर्ट लाई जाते हैं, जड़ नाल वधदे जाते हैं, लाई जाते हैं, वधदे जाते हैं। कुछ लोगों की आस्था जुड़ी है, फिर वो वढदे नहीं, फिर वो होर वधदा जांदा। तीजी उदाहरण भाई साहब देंदे ने, जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार कछ। हुंडी, हुण हुंडी तुहानूं समझ नहीं आउणी, मैं सौखे ढंग नाल समझण वास्ते हुंडी की थां ते चैक शब्द वरत लवां। चैक टाइप ही हुंदी सी। चैक होवे किसी कोल ट्रिलियन डॉलर का, उन्होंने मोड़ के परस दे विच एक पासे भावें पा लो, जेब च पा लो। पर हुण तुसीं वो ट्रिलियन डॉलर का चैक लैके बैंक चले गए भी कैश कराना है, तो वो जीरो गिण के ते फिर तुहाडे वल वेख के कहेगा भी बैग लैके आए हो, किन्ने बैग ले आए हो, बंदे हैगे ने नाल, कल्ला किवें चुकेगा।
इन्ने दे तेरे तो चुक के लिजाए नहीं जाने। अच्छा हुण ओहदा चैक का कोई वजन नहीं, कोई आकार भी बहुत ज़्यादा नहीं, आकार छोटा है, वेटलैस है, पर जो कीमत पैंदी है फिर वड्डे वड्डे बैग भरे जाते हैं। हीरा छोटा है, कीमत ज़्यादा है, बोड़ का बीज छोटा है, दरख्त बहुत वड्डा है, चैक का आकार वेट ना मात्र है पर कीमत बहुत ज़्यादा है। हुण तोड़ा कित्थे झाड़ते हैं भाई साहब? असल मैसेज की है? ये तो एग्जाम्पल्स ने। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए से विविध करे बिरख बिथार जी। जैसे बर बांधे हुंडी लागत न भार कछ, आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। तैसे गुर बचन, ये गुरु दे जेड़े बचन ने वेखण नूं भावें एक पंक्ति ही होवे सूरदास साहब दी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में, जानिए महात्म गए ही हरद्वार जी। ये इन्नी पंक्ति भी पढ़ के समझ के फॉलो कर ली तो सिखा तेनू एदा महात्म रब की दरगाह च पता लगेगा। तू आखेगा कमाल हो गई है, मैं तो कहता हाँ सूरदास की इको ही पंक्ति है, ये तो मेरे जीवन च क्रांति लै आई है, ਇਹਦਾ बहुत महात्म। फिर मैसेज बड़े कमाल का है। वो कहते बहुत लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक काम कर लो, अपने मन को मुखातब होंगे ने, पर यह जड़ा गल किसी दूजे को समझानी है, मुखातब अपने आप को होना है। इनू गुरबाणी दे विच कहंदे ने अन जुगती अलंकार। मैं बड़ी बार बेनती की इधर आई ली, मैनू माफ़ करना, क्योंकि उदा का बचन फिर आ जाता है, फिर मैनू करनी पैंदी। अनजुगती अलंकार दे अर्थ ने भी जिहड़ी सियाणी सुआणी है ना, घर दे विच नूंह आई होवे ना विआही नवीं नवीं, ते ओनू कोई गल कहनी होवे ते ओह झकदी है भी नवीं नवीं आई है किते गुस्सा ना कर जाए। फिर उन्हां अपनी बेटी जिहड़ी ओहदी उम्र दी कॉमन जी गल दूहां वास्ते करदी है, कॉमन जी, जां कई बार वेंदी धी हाली है भी कोल नूंह भी सुनती है, जे सियाणी हुई तो आपे समझ के फॉलो कर लेगी। इनू तुसीं कहंदे हो कहना धी नूं समझाना नौ नूं। बाणीकार भी कदी कदी समझाना सानू चाहुंदे ने, मुखातब अपने मन नूं हुंदे ने। साडी जीवन जाच इस तरह की है भी सानू कोई नीच कह सकता है। गुरु नानक कहन लगे जे इन्हां नूं नीच कहा इन्हां भज जाना। सानू समझाउण वास्ते कहन लगे नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक। इनू कहंदे अनजुगती अलंकार। अनजुगती अलंकार दूजे नूं कहना, समझाना किसे नूं, कहना किसे नूं। भगत सूरदास साहब अपने मन नूं मुखातब होकर कहंदे ने, छाड़ मन हे मेरे मना आ काम छड्ड दे। किहड़ा काम? हर बमुखन को संग। बड़े कमाल का बचन जे, सबब बनया जरूर लाहा लिया जे। हरी तो जेड़े लोग बेमुख ने ना, उन्हां दी संगत छड्ड दे। हरी तो गुरु तो बेमुख क्यों? क्योंकि हरी तो बेमुख लोग जेड़े ने वो तेनू भी बेमुख बना देंगे, क्योंकि संगत दी रंगत चढ़दी है। जिवें दी संगत ते जाओगे उवें दी रंगत चढ़ेगी। बैंफ जाके ठंड ना भी महसूस करनी चाहिए तो ठंड लगेगी। फुलों की बगीची जाके सुगंधी ना भी अंगीकार करनी चाहिए तो नासका तक आवेगी। अग कोल जाके निग ना भी लेना चाहिए तो निग मिलेगा। और गंदगी के ढेर कोल जाके बदबू ना भी अंगीकार करनी चाहिए तो अंगीकार हो जाएगी। नहीं मैं वैसे कैसीनो जाना, मैं जुआ नहीं खेडदा। ये किद्दां हो सकदा भाई? तू नहीं खेडदा तो खेडन लग पवेगा। मैं शराबियां कोल बहना जरूर हाँ, पर मैं नहीं पींदा। तू ना पींदा होवेगा पर तू पीण लग पवेगा। जे तू चाहुंदा भी मैं ना ही पीया, फिर इन्हां कोल ना बैठिया कर। बैठिए पास बडन के होत बडन स्यो मेल, सभी जानत के बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। मैं इस तरह के लुधियाने कई लोगों तो वाकफ हाँ, जेडे किसी की दुकान ते ना
पानी पियाण वास्ते लगे सन। चौड़े बाजार, वड्डियां वड्डियां दुकानां, बाऊ जी काम दे दिओ, उन्हें कहना पानी पिया दिया कर, झाड़ू ला दिया कर। अच्छा हुण कोई काम है नहीं जी, गली च खड़ा हो जा, उन्होंने लोगों को खिच खिच के लिया अंदर, इत्थे सस्ता है जी, चंगा है जी ठीक है। उन्होंने लोगों के हुण उत्थे सत्संग करोड़ों विच बिजनस ने, जिहड़े कदी पानी पियाते होंदे हन दुकानां ते, खिमा करना झाड़ू मारते होंदे सन। क्यों? क्योंकि संगत व्यापारियों की हो गई, सौदागरां की हो गई, अच्छे बिजनसमैन लोगों की हो गई। उन्हों की सेवा कर करके कुछ सुते सिद्ध वेख के सीख गया, कुछ मिन्नत तरला करके सीख लिया। बाबू जी मैं भी थोड़ा जिहा काम शुरू करना, उन्हें कहना बेटा तू भी कर लै, तेरी फाइनैंशली हैल्प भी कर देंगे, तेनू जाच भी दसांगे। जिवें दे लोगों कोल बईए उवें दा साडा हौली हौली किरदार बनना शुरू हो जाता है। भलियां कोल भले, बुरियां कोल बुरे। इसलिए भगत जी कहते हैं हरि तो बेमुख लोगों का संग छड्ड दे, गुरु तो बेमुख लोगों का संग छड्ड दे। एक बचन गुरु अमरदास का बेमुखताई तो बचन वास्ते प्रेरणादायक, रोज अमृत वेले पढ़ते हो, मैं तुहाडी नज़र करा। हजरत सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहते जे को गुर ते बेमुख होवे, जे मन लिया कोई गुरु तो बेमुख हो गया, जे को गुर ते बेमुख होवे मारे फिर की हुंदा है? हजूर कह लगे विन सतगुर मुकत ना पाए। पहला वकारां तो मुक्त होना है जींदे जी गुरु की कृपा नाल, फिर वो जन्म मरण तो मुक्त कर देता है। पहला तो वकारां तो ही मुक्त होना पैंदा ना, फुरनिया तो मुक्त होना पैंदा है। ते जे वकारां तो मुक्त नहीं होए, फुरनिया तो मुक्त नहीं होए, तो फिर मरण तो बाद मैनू मुक्ति मिलेगी। तो बाणीकार कहते भी मूए हो जो मुकत देओगे, मुकत ना जाने कोयला। ये पंडिया मोको ढेड कहत तेरी पैज पछाउंडी होयला, फिर वो कादी मुक्ति है? वाहिगुरू जे को गुरते बेमुख होवे। बड़े ध्यान नाल बेनती सुनियो, छाड़ मन हर बमुखन को संग, ये साडा विषय अज दा। यदि व्याख्या वजों पंजवें पातशाह ने एक प्रॉपर शब्द उच्चारण किया, वो भी मैं तुहाडी नज़र करना है। जे को गुरते वेमुख होवे बिन सतगुर मुकत ना पाए, पावे मुकत ना होर थे कोई पुछो विवेकियां जाए। जाओ जाके सियाणियां तो पुछ के वेख लो, जे कोई गुरु तो बेमुख हो जाए दोबारा गुरु कोल आके ही मुक्ति प्राप्त करेगा। बेमुखताई दे विच भावें कितने जन्म लंघ जाण मुक्त नहीं हो सकता। जदों महाराज सियालकोट गए ना गुरु नानक साहब, महाराज दे जाण दी वजह सी भी उत्थे एक जोड़ा सी ते उन्हां दे घर संतान कोई नहीं सी। जिहड़े धार्मिक लोग हुंदे ने, लोक ना डोले होए उन्हां कोल आ जांदे ने। मैनू भी कई साल हो गए ने सेवा करदे नूं, कई बार कोई प्रेमी आ जाते हैं, ज्ञानी जी आ गल है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी चिंता है, भाई अरदास करो। मैं भी अरदास करांगा। अरदास हुक्म नहीं हुंदी, अरदास तरला है, मन लै ना मन्ने ओदी मौज है। एक जोड़ा उत्थे रहिंदा तां उन्हां दे घर संतान नहीं सी। कित्थे रहिंदा? सियालकोट, लहिंदे पंजाब विच। इसे नगर विच एक धार्मिक बंदा है, उहदा नाम है हमजा गौश। छाड़ मन हर विमुखन को संग, और जे को गुर ते वेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। मैं इनू एक्सप्लेन कर रहा तुहाडे तो आग्या लैके। हमजा गौश कोलों गए तो उन्हें मिन्नत की भी साडे घर संतान को नहीं, तुसी दुआ करो बच्चा हो जाए। हुण साडी विडंबना है भी जिहड़े लोग विआह नहीं ना करते, डेरे बना लैंदे ने, फिर एक स्टेज ते जाके दूजियां दे पुत्रां नूं वेख वेख के मन चाहुंदा भी मेरा भी इस तरह का मुंडा हुंदा ना, मेरी भी इस तरह की कुड़ी हुंदी, मेरी भी इस्त्री इस तरह की हुंदी, मेरा भी घर इस तरह का हुंदा। इसे करके गुरमत कहती ना भी सगल धर्म है गृहस्थ प्रधान है।
जे बेहंगम रह के फिर लोगों के बच्चों के कब्जे करने ने तो फिर विआह करा लेंदा, हर्ज की सी। हमजा गौश नूं डोलिया होया जोड़ा कहन लगा भी महाराज संतान नहीं, दुआ करो बच्चा हो जाए। उन्हें आखा भी लोहा गर्म में चोट कर देनी चाहिए। आखन लगा भी बच्चा तो जाएगा हो, इतिहास है, कोई मतलब कल्पत कथा नहीं, पर वो बच्चा तुहानू मेरे डेरे ते छड्डना पएगा। डोली हुई मां कहन लगी लोकी हुण ते औंतनी कहिंदे ने, ते जे बच्चा हो जाए ये डेरे ते छड़ कदी कदाई इत्थे आके वेख ला करांगी, जी सरसा हो जाए करेगा। आखन लगी बाबा जी कोई गल नहीं, बच्चा तुहाडे डेरे ते छड्ड दियां। करना कुदरत दा बच्चा हो गया। बच्चा हो गया, 2 महीने लंघे, 6 महीने लंघे। बच्चा बाबा जी अजे छोटा है, की करोगे तुसी, अजे इनू पढ़ लैण दिओ। करद्या करद्या बच्चा 5 7 10 12 वरियां दा हो गया। बीबी तेनू क्या बच्चा डेरे ते छड्ड जा। बाबा जी बस्तर बना लो, कोई पदार्थ दसो। बाबी माया की लोड़ है, ले लो, बथेरी टाल मटोल करे। पर हमजा गौश आखे भी तू टाल मटोल ना कर, मैनू मुंडा चाहिदा, तेनू मुंडा छड्डना पैना डेरे ते। एक दिन छाती ते पत्थर रख के उस मां ने कह दिता बाबा जी कदी मुंडे भी दिते गए ने, मुंडा नहीं देना मैं। माया लैनी आ ले लै, बस्तर लैने नहीं ले लै, भोजन छका देनी आ, पक्की माया बन देने तेरी, महीने दी साल दी सेवा करद्या करांगे, मुंडा नहीं देना। आखन लगा तू झूठी है। इन्हें बंदे बुंदे भी इकट्ठे किए, उन्हें भी आख्या भी छड्ड खैड़ा, मां है ममता है बेचारी दी। आखन लगा तुसी सारे झूठे, वाहिगुरू वाहिगुरू, तुसी सारे झूठे हो, तो मैं सारा सियालकोट गर्क कर देना। उन्हें ऐलान कर दिता भी 40 दिन मैं तपस्या करन लगा, जिदन मैं बाहर निकलांगा मैं सारा सियालकोट गर्क कर देना। महाराज नूं पता लगा, हजूर भाई साहब नूं लैके पहुंच गए, भोरे विच बैठा सी। महाराज ने कीर्तन शुरू किया, बाहर आया, सच्चे पातशाह कहन लगे भी हमजा गौश तू सियालकोट नूं क्यों गर्क करना चाहुंदा। आखन लगा महाराज झूठियां दा शहर है, वो सच ते झूठ वाली कहानी बनी कित्थों, झूठियां दा शहर है, मैं सारा शहर गर्क कर देना। महाराज उहदे कोल बैठ के भाई मरदाने नूं 2 पैसे दिते। आखन लगे जा मरदानिया बाजार चों 1 पैसे का झूठ ते 1 पैसे का सच लाया। जदों भाई साहब दुकान ते जाण ते लोकी हसन भी शदाई जिहा फकीर, भी कदी दुकानां तो झूठ ते सच भी मिलिया। वो शदाइया दुकानां तो झूठ सच नहीं मिलता हुंदा। वो कहन लगा मेरे गुरु ने कहा मिलता है तो तां ही भेजिया है, उस साधारण बंदे ने थोड़ा भेजिया। मैं गुरु नानक दा कीर्तनी आवां, मैनू गुरु नानक ने भेजिया है, तुहाडे कोल है तो दे दिओ, नहीं तो मैं होर कितों लै लांगा। अगली दुकान वाले ने भी मजाक कढ़ाया, अगली ने भी। घुमदा घुमांदा जिस हटवाणीए कोल गया, उसका नाम सी मूला सियालकोटिया। तुहाडे कोल झूठ ते सच मिल जाएगा। वो कहने लगा मिल जाएगा, की करना ही। वो कहने लगा पता नहीं, मेरे गुरु ने कलिया, किन्ना चाहिए। आखन लगा जी 1 पैसे का झूठ तो 1 पैसे का सच। उन्हें पैसे लैके गले च पा ले, 2 पर्चियां बनाइया, एक ते लिख दिता जिउना झूठ ते मरना सच, दोवें तय ला के दे दी। जिस वेले मूला लैके गया ना गुरु नानक साहब कोल, ते महाराज ने आख्या वेख हमजा गौश, ऐसे जागे जागे लोग भी सियालकोट में बैठे हुए ने। एक बीबी वायदा करके मुकर गई है, तू कहना मैं सारा शहर गर्क कर देना है, पर तू वेख इदां इदां दे जागे लोग इत्थे रहिंदे ने जिहड़े कहंदे ने मरना सच है ते जिउणा झूठ। चलो उहदा थोड़ा गुस्सा महाराज ने ढेला किया। मूला जिहड़ा है वो ये गल सुन के उहदे मत्था ठणकिया भी इदां दा साधु पुरुष दे दर्शन करने चाहिए ने। महाराज दे कोल आया, कीर्तन सुनिया, बाबा जी मैं तुहाडे नाल ही जाना चाहुंदा। महाराज कहणगे चल। महाराज दे नाल ही आ गया। महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने विचर विचर के महाराज प्रचार करते रहे, मूला भी नाल ही विचरदा रहा। तो प्रेमियों मेरी बेनती है अगले पासे वाले ते पिछले पासे वाले सारे वीरां नूं कागरता दी दात बख्शो। विचर के महाराज कीर्तन करते रहे, भी नाल विचरदा रहा।
एक दिन दोबारा सियालकोट के कोलों लंघन लगे तो आखन लगा, बाबा सियालकोट के कोलों लंघन लग्या जे तेरी आग्ञा होवे तो मैं परिवार नूं मिल आवां। महाराज कह लगे, मूलिया परिवार का कारोबार चल रहा है, बच्चे पोडर हो गए ने, घर की सियाणी है, तू उत्थे गया तो फिर मोह विच खचत हो जाएगा, छड्ड परा। नहीं बाबा जी मैं गया तो आया। महाराज कह लगे, मूलिया इस तरह हुंदा नहीं, तू सियाणा बन। नहीं महाराज बस मैं गया, घड़ी पल बवांगा, गल्लां बातां दुख सुख पुछांगा, आ जाऊंगा। जा बई होया। जिसले भाई मूला जी गए उत्थे गल्लां बातां कीतियां, हुण परिवार दा मोह, गल्लां बातां करदियां 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 मैं जाना है, बाबा उडीकदा होना। आखन लगी, तू कित्थे जाना, तो फकीर ने, उन्हां दा ते काम ही ये है, ते तू कित्थे जाना है? जे तू जाना है तो असीं कित्थे जाना? फिर मूला ना आया। उडीक उडीक के महाराज कह लगे, मरदानिया मूले ने नहीं आना, चल चलीए। चले गए। समय का पहिया अपनी चाले चलता रहा। छाड़ मन हर बमुखन को संग, जेड़े हरी तो बेमुख ने ना, वो तेनू रब तो ते गुरु तो बेमुख कर देंगे। इन्हां दी शोभत तो बचिया कर। मूले नू मूले दी घर दी नहीं बेमुख कर दिता। विचरते रहे। एक दिन दोबारा किते ना, एक बार तो पहला हमजा गौश का उधार करना है, फिर वो मूला नाल चला गया, फिर दोबारा जदों आए तो मूला घर आया। हुण दोबारा महाराज आए सियालकोट। आखन लगे, मरदानिया मूला तो बेमुख हो गया, पर सानू तो बिरध बाणे की लाज है ना, चल मूले के घर चलीए, मिल के आउने आ। दरवाजा खड़काया, उन्हें चीथा नहीं वेख्या भी वो गेरुए रंग के कपड़े, दो फकीर जेड़े मेरे पति नूं लै गए सन ते कई साल नहीं सी आया, इन्हां दे नाल चला गया तो फिर हट्टी बंद हो जाएगी, काम खलो जाणगे, असीं की करांगे। बूहा खड़काया, पहलां ते आई कोना, जिसले आई तो महाराज कह लगे, मूला। आखन लगी, मूला तो घर कोई नहीं। हजूर मुस्कुरा पे कह लगे, बीबा मैं तेरी समस्या नूं समझना, असी मूले नूं नाल नहीं ले जाते, सानूं ते प्रेम जागया, मिल के जाना है, मूले नूं कर। बाबा जी तुहानूं आख्या भी मूला घर कोई नहीं। जिस वेले इन्हें दूजी वारी आख्या ना भी मूला घर नहीं, तो हजूर कह लगे घरे ही होना, भेज मुकर गई। इतिहासकार कहते हैं तीजी वारी महाराज कह लगे भेज ओनू। आखन लगी, बाबा जी तुहानूं आख्या ना मूला घर कोई नहीं। सच्चे पातशाह सुते सिद्ध कह लगे, फिर घर कोई नहीं तो कोई नहीं। भादरों का महीना, तराड़का बड़े लगते ने, और साध संगत जी जेड़े बंदे इन्ने सिरड़ी ने ना भी बिल आउंदा, जेठ च भी एसी नहीं चलाना, हाड़ च भी नहीं, सौण चो भी मजबूर हो जाते हैं। साडे उत्थे इदां दा वातावरण बन जाता, फिर वो भी 16 तो घट नहीं करते। भादरों ज़्यादा सख्त हुंदा है। सप मोस्टली निकल आउंदे खुड्डां चों। वो किरे घर चों ही सप निकलिया, मूले नूं डंग मारिया, सप जहरीला सी, वो जहर चढ़ गया। झटपट चुक के नाल बंदे लैके महाराज दे सामने लिया के लटाया। महाराज कृपा करो, इनू ठीक करो। महाराज कह लगे भी सप लड़ गए, इनू देर हो गई है, जहर चढ़ गया है, औषधि काम कर सकती है दवाई, पर हुण देर हो गई है, हुण की हो सकता है? कोई गल नहीं, हुण उहदे हुक्म च जो हो गया ठीक है। उत्थे महाराज ने बचन उचारिया सी, नाल किराड़ा दोस्ती। कराड़ एक करैक्टर है, गुस्सा ना करियो। जेड़ा बंदा हर गल ये वेखे भी इत्थों मिलदा की है, आए हो तो की लियाए हो, चले हो तो की दे चले, वो कराड़ है। हो सकता कराड़ दे घर जन्म लैके भी कोई कराड़ ना होवे, ते हो सकता किसी होर भाईचारे च जन्म लैके भी किसी का करैक्टर कराड़ वर्गा होवे। कराड़ एक आइडियोलॉजी है, बिरती है। दुकान बंद हो जाएगी, इदा हो जाएगा, उदा हो जाएगा। महाराज कह लगे, नाल किराड़ा दोस्ती, कूड़ी कूड़ा पाए, मरण ना जापी मूलिया आवे किते थाए। मौत का तो पता ही नहीं कितने आ जानी है। कराड़ नहीं बनना चाहिए। और मैसेज दिता भी दोस्त बनाने तो पहला देखो बंदा कराड़ तो नहीं, कराड़ आइडियोलॉजी, कराड़ करैक्टर। जे कराड़ है फिर पीछे पैर खींच लो। क्यों? क्योंकि जित दिन उनका स्वाय होए ना आवे, तित दिन नेड़े कोई ना टकासा। जिथे लालच ते दोस्ती खड़ी होवेगी वो नहीं निभेगी। फरीदा जां लब तां नेओ किया, अब बड़ा तहलका मचा जी, ईसाई बन गए ने, ईसाई बन गए। मैं कई बार कहा, अज फिर मैं बड़े गट्स नाल कहांगा,
कौन साई बन गया? सिख साई बन गया। वो चलियो कदी सिख भी साई बनया? खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा, प्याली पानी दी, बच्चों के टोटे करके हार गलों विच इस्लाम कबूल करो। वो कहंदियां नहीं करना। सिख पैसे लैके धर्म परिवर्तन नहीं करता। उन्हां दी शक्ल सूरत सिखां वर्गी सी, वो सिख नहीं सन। और उन्होंने वापस लिया के नगारे ना वजाओ। उन्होंने लालच दिता, उधर चले गए, तुसी थोड़ा जिहा ज़्यादा दे के वापस लाया, एक तीजा तुहाडे नालों ज़्यादा दे के उधर लै जाएगा। जां लभ तां नेओ क्या? जिथे लालच है उत्थे प्यार हुंदा ही नहींगा। लभ तां कूड़ा नेओ। मूला गुजर गया, महाराज चले गए। इतिहासकार कहते हैं भी जदों नांदेड़ साहब गए ना महाराज कलगीधर पातशाह, गुरमुखो उत्थे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शिकार घाट साहब, तुसीं दर्शन कीते होणगे। ते उत्थे हजूर जदों शिकार खेडन निकले ना, घोड़े ते चढ़े हुए हजूर ते लंबी सेल महाराज के हत्थ च। सेल किते इंसाइक्लोपीडिया देखिया, हुंदी ते नेजे वर्गी है, पर यह डांग 8, 9, 10 फुट लंबी होंदी है। अगों बनतर थोड़ी जी डिफरेंस होंदी है। एक झाड़ी विचों शशियार के खरगोश कड्डिया महाराज ने, उहदे पिछे घोड़ा ला दिता। सिख बड़े हैरान ने वेख के भी महाराज अज की चोज कर रहे हैं। वो बेचारा झाड़ियां च लुकदा है, महाराज फिर उन्होंने कड्डदे ने, फिर भजांदे ने पिछे घोड़ा, फिर अगे। ते हुण हार के भाई दया सिंह कहंदे सच्चे पातशाह छोटा जिहा मशूम जिहा जानवर है, बड़ा डराकल जिहा बेचारा है, ते छड्डो परां इहनूं क्यों मारदे हो? वर्डिंग सुनिया नहीं, छड्डो परां इहनूं क्यों मारदे हो, क्यों मारदे हो? हजूर गंभीर हो गए, घोड़े तो उतर के उहदा वध कीता। हत्या होर चीज़ हुंदी है, वध होर चीज़ हुंदा है। वध कीता और वध करके हजूर कहन लगे भाई साहब नूं, भाई साहब मैं मारदा थोड़ा वां, मैं तेनूं जवालना वां। महाराज तुहाडियां तुसीं जाणो समझ नहीं आई। कहन लगे पुराना सेवक है साडा मूला, बेमुख हो गया सी ना, और बेमुख होके जूना विच ही पटक रहा। जे को गुर ते वेमुख होवै बिन सतगुर मुकत ना पाए, पावै मुकत ना होर थै कोई, पुछो विवेकियां जाए। फिर लिखा अनेक जोनी भरम आवे, भरम ने पटक पटक के, कदी कुछ बनया कदी कुछ बनया, कीट पतंगा गज मीन करंगा, पंखी सरप होयो, हैवर बृख जोयो, पटक पटक के हुण इस जून च सानू मिल गया। अज इनू खरगोश के शरीर चों कढ के इहदी मुक्ति करनी चाहुंदे आ। अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, फिर मुक्त पाए लाग शरनी, सतगुर शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। गुरु तो बेमुख हो गए, रब तो बेमुख हो गए, जूना की भटकना प्राप्त होवेगी। इसलिए छाड़ मन हर विमुखन को संग, जेड़े हरी तो बेमुख ने उन्हां दी संगत छड़ दे, उन्हां कोल ना ब्याह कर। अच्छा कई बार असीं कहने जी भी असीं किहड़ा उत्थों कोई माड़ी गल सीखने आ। मैं अगे 1-2 एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, अग की दित्ती है, बगीची की दित्ती है, बर्फ की दित्ती है, गंदगी की दित्ती है। भाई गुरदास ने तो कमाल ही कर दी है। वो कहते हैं साकत बंदे कोल भावें किहड़ी बिरती नाल जा, उत्थे नुकसान ही नुकसान है। कोयला शीतल कर करता है श्याम गए, परस तपत कर दग्ध करता है। ऊकर के चाटत कलेवर को लागै छोत, पाटत शरीर पीर धीर ना तरता है। फूटत जो गागर परत ही पाखान पर, पाहन हरत पुन गागर हरत है। तैसे ही असाध संग प्रीत हूँ विरोध बुरो, लोक परलोक सा लोक परलोक दुख दोख ना टरत है। कोड़ा ठंडा है, उन्होंने हाथ लाओगे हाथ काला करेगा, फिर वो हाथ मूँह नूं लगेगा मूँह भी काला होगा। अच्छा चलो छड्डो, हुण हलवाई की भट्ठी चमक रहा है, हीरे वांगू चमकदा। असल में हीरा बनता ही इस तरह, जिहड़े बहुतात हीरे ने वो कोयलियां दीयां खानां विचों ही प्राप्त होंदे ने। एनर्जी है ना हीरा, और की है। एक बहुत वड्डी सिल विचों एनर्जी थोड़ी सुंगड़दी रहिंदी है, फिर कई सदियां तक जुगां तक धरती की छाती विच वो फिर सारा
सोलर सिस्टम वो मिलता रहिंदा वो फिर एक थोड़े जे हिस्से में जो इकट्ठी हो जाती है वो चमक वो दमक इन्नी जबरदस्त हो जाती असी वो नाम हीरा रख दिता उन्होंने फिर तराश के विचों उन्ना को कढ़ के पासे कर लेंगे इसलिए इनू ब्लैक डायमंड कहते हैं हीरे नू डायमंड कोले नू अंग्रेजी तुसी ब्लैक डायमंड कहते हो हलवाई की भट्ठी विच तपिया होया मगिया होया चमक रहा सोहना लगता है हुण हत्थ च फड़ लईए फड़ लो हुण हत्थ नू साड़ेगा जे आम हालत में हत्थ काला करेगा चमक रहा तो हत्थ नू साड़ेगा दोवां हालतां विच नुकसानदेह है असाध बंदा साकत बंदा उहदे कोल दोस्ती करो उहदे नाल दुश्मनी करो नुकसान है कोयला शीतल कर करता है श्याम गए परस तपत कर दगत करता है कूकर के चाटत कलेवर को लागे छोड़ अच्छा है सिखिज्म है वैसे मैनू पता लोगों कुत्ते रखे ने उन्होंने दे नाल खांदे भी ने एक मेरे कोल क्लिप आया है सोशल मीडिया ते वो बंदा कुल्फी लैके ना तो उन्होंने मूँह च पा के चूपदा है दूजी वारी फिर कुत्ते नूं चपांदा है तीजी वारी फिर आप चूपदा है मैनू पता इदां भी करते हैं नाल भी सवांदे ने नाल खांदे ने पर सिखिज्म के दृष्टिकोण तो ये वेत नहीं गा ये मैं बेनती करते हैं कुत्ते रखना होर गल है उन्होंने ढंग नाल रखना उन्होंने तो डिस्टेंस बना के रखनी या जो भी है पर चलो ये आज़ादी है जिमें जिमें किसी को ठीक लगता मैं तो प्रचारक हाँ मैं तो गुरमत दी गल्लां ही करनियां ने अपलाई किन्ने करना किन्ने नहीं करना वो तो लोगों की मर्जी है कुत्ता नाराज होवे ते कट्टेगा माड़ी गल है इंजैक्शन लवाने पैणगे ते जे प्रसन्न होवे फिर की करेगा फिर चट्टेगा फिर किहड़ी वधिया गल है महाराज की ताबिया बहना कुत्ते ने चट लिया हुण पहलां सण के सी इशनान कर बस्तर बदल फिर ही बैठेगा पोथा साहब नूं हत्थ लाना कुत्ते ने चट लिया हुण दोबारा सदाई कर उंज थोड़ा बैठ सकेगा ना इहदा कट्टिया चंगा ना इहदा चट्टिया नाराज है ते कट्टेगा खुश है ते चट्टेगा कुकर के चाटत कलेवर को लागे छोत पाटत शरीर पीर धीर ना तरत बड़ी पीड़ हुंदी है बंदा धीरज नहीं तरता हाय मर गया तीजी एग्जाम्पल फूटत ज्यों गागर परत ही पाखान पर पत्थर दे उत्ते गागर डिग पै पित्तल दी जां गागर दे उत्ते पत्थर डिग पवे नाइफ ते खरबूजा डिग पै खरबूजे ते करद डिग पवे चाकू डिग पवे नुकसान किहदा खरबूजे दा साकत कोल गवाण वास्ते हुंदा ही कुछ नहीं ये तो इस तरह है जिवें तुसीं बड़ियां सोहणियां सोहणियां टाइलां लांदे हो ना बाथरूम च किसी भट्ठे तो खिंगर लिया के ना टाइल दे नाल घसाना शुरू कर दो हुण खिंगर दा की जाना जी उहदे कोल गवाण लई है ही कुछ नहीं पर टाइल दा रहना कुछ नहीं गुरमुख टाइल है साकत खिंगर वर्गा उहदे नाल खैबड़ नहीं मूर्ख है नाल ना लूजी है अच्छा तुसीं ओनू हरा लवो डिस्कस विच फिर किहड़ी बहादरी है तुलसी कहता ज्ञानियों के हम गुरु हैं सियाणे बंदे नू गल समझानी बड़ी आसान होती है 30 सैकंड भी नहीं लगते 100 सियाणे इको मत मूर्खां आपो अपनी सियाणे नू ज्ञानवान नू समझाना बड़ा साध संगत जी आसान हुंदा है मूर्ख नू समझाना बहुत औखा हुंदा है ज्ञानियों के हम गुरु हैं मूर्खों के हम दास तुलसी फूटत ज्यों गागर परत ही पाखान पर पाहन हरत पुन गागर हरत है तैसे ही असाध संग प्रीत हूं विरोध बुरो इसे प्रकार असाध पामर बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम भी माड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुश्मनी भी माड़ी फिर की करिए वो कहते ਉਹਦੇ ਕੋਲ जा ही ना ਉਹਨੂੰ अपने कोल ना आउण दे तू ਉਹਦੇ कोल जा उल्टी रे मन उल्टी रे साकत स्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ प्रीत अज
ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਹੈ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਡਨ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਬਨ में बसिया कसिया जल में बिछुआ गह लीजै कान खजूर प्रवेश कराए कै सांप के मुख में उंगरी दीजै गिर से गिरिय अग में जरिए और आरी के काव अनेक सहीजै एते तो कष्ट अनंत सहो पर मूर्ख मीत को संग न कीजै। क्या बात है। शेरां नाल भरे हुए जंगल विच जाना पे ते चले जाओ, हालांकि शेर ते एक ही नहीं मान, वो खा जाएगा ना। नीति ग्रंथ वाला कहता वध तो वध जन्म तेरा व्यर्थ चला जाएगा। शेर खा जाता, कोई इधर जंगल है वो शेर ने इधरों मूर्ख आ गया, मनमुख आ रहा, मनमुख वाले पासे ना जाई, जंगलों नाल शेरां नाल भरे हुए जंगल वाले पासे चला जी। ਸਿੰਘਨ के बन में बसिए कसिए जल में बिछुआ गह लीजै, बिच्छू बड़ी असह दर्द होंगी है, हाथ च फड़ना पै तो फड़ ली। ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਭੋਏ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਝੱਗ ਜੀ ਬਣ ਝਟਪਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। कान खजूर प्रवेश कराए कै सांप के मुख में उंगली दीजै, सप के मूँह च उंगल पानी पै ते पा दी। हुण सप के मूँह च उंगल पाने का नतीजा तो सानूं पता ही है, गिर से गिरीए, पहाड़ तो छाल मारनी पै मार दे, गिर से गिरीए अग में जरीए। ये पता क्यों है? जिहड़े तुसीं सियाणे 2-4 गुरसिख समझदे हो, मैं तुहानूं बेनती करा सुधार करने वास्ते। सानूं अजे तक समझ नहीं आई भी ये स्कूल है, ये तां प्रॉब्लम होंगी, तां सानू समझ नहीं आती भी किद्दां करना है, कदों करना है। जिदन इनू स्कूल समझ लिया उदन पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएगा, करफ्यू वाला माहौल बन जाएगा। अजे स्कूल नहीं समझिया जी, होर तरह असीं प्रिपेयर हाँ भी चलो उत्थे भाई लगा हुंदा, चलने आ, इदां करांगे उदां करांगे, एहतियात। खैर गुरु किरपा करे, मैं समाप्ति वाल आवां, एक बारी सारे किरपा करो, आखो सतनाम श्री। एते तो कष्ट अनंत सहो पर मूर्ख मीत को संग ना कीजे, छाड़ मन हर विमुखन को संग। गुरु अर्जन साहब कह लगे भाई गुरदास जी बचन बड़ा पायेदार है, क्या बात है, नमस्कार है सूरदास जी नूं, पर आम बंदे नूं समझ नहीं आउणी, इहदी व्याख्या करनी चाहिदी है। ते महाराज करो व्याख्या। महाराज कह लगे एक शब्द मेरा लिख, फिर इहदे नाल लगदा एक शब्द मेरा लिख। महाराज लिखाओ। महाराज कह लगे लिख सारंग महला पंजवां, नाल लिख सूरदास, संगत कन्फ्यूज ना होवे, ये उन्होंने पता लग जाए भी गुरु अर्जन साहब सूरदास की इस पंक्ति की प्रथाए बचन उचार रहे हैं। सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वाहिगुरु वाहिद है, एक रस है, सतगुरु की कृपा नाल प्राप्त हुंदा है। मनुख कितना ही विद्वान होवे, पहलवान होवे, धनवान होवे, अपनी अकल के बलबूते वाहिगुरू नूं प्राप्त नहीं कर सकता। सतगुर प्रसाद। हुण गुरु अर्जन साहब की व्याख्या किस तरह करते हैं? हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन चोक। ਜਿਹੜੇ हरि ਦੇ ਲੋਕ ने, हरि जन ने, परमात्मा ਦੇ सेवक ने, वो हरि ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हरि ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ हरि ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। हर के संग बसे हर लोक, ये लोक शब्द है कक्के नाले प्रेमियों। कई बार होंदा भी ज़्यादातर लोक शब्द होंदा है,
कई बार हुण मेरे कोल ते पोथी है, सानू इस तरह लगदा शायद ज्ञानी जी नूं कोई मिसटेक लग रही होएगी, ते लोक लिखिया ते लल्ले नूं होड़ा कक्का। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो। वो अपना तन अपना मन इतों तक अपना सब कुछ अर्पण कर देंदे ने हरि नूं। अर्पण करन दा अर्थ ये नहीं भी सब कुछ वेच के ते वो अमाउंट लिया के गोलक च पा देना, ये थोड़ा समझ लेना। फिर अर्पण की करना, एक अंदरों अपने आप को प्रिपेयर करना, मेरा तन तेरा है, मेरा धन भी तेरा है, ये मेरी कोई काबलियत नहीं। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। थोड़ी देर होर मैनू दे दिओ, 10 को मिनट 7 को मिनट ही, फिर तुसी बचन विलास कर लिया जे, 2-4 शरीर तुहाडे कोल ही बिठा देंगे, कथा सुना दिया जे। एक बारी फिर कृपा करो, आखो सतनाम श्री। तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन चोक। उन्होंने फिर आत्मक आनंद, आत्मक अडोलता और लटक वैगुरू के चरणों की वो प्राप्त होंगी, अंदरला आनंद प्राप्त होंगे। किन्हां नूं? जिहड़े हर के संग बसे हर लोग। सूरदास जी, हरि तो बेमुख लोगों की संगत नहीं करनी, पर हरी हरी जपण वालियां की संगत तो करनी है ना। उन्हां दी संगत विच आनंद सहज धुन झोक प्राप्त होवेगा। इनडायरैक्ट तो उन्होंने कह दिता भी भैड़ियां की संगत च नहीं जाना, चंगियां दी च जाना है, पर गुरु साहब यदि व्याख्या कर रहे हैं। भगत जी ने कुछ गलत लिखिया, गुरु साहब उन्होंने दुरुस्त कर नहीं, भगत जी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, गुरु साहब उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। गलत बचन तो दर्ज ही नहीं सी हो सकता। जे 4 भगतां दी बाणी रिजैक्ट की जा सकती सी, कान्हा पीलू छज्जू इत्यादि झूर दी, ते फिर ये जिहड़ी बाणी है ये भी जे गलत हुंदी तो रिजैक्ट की जा सकती सी। ये तो गलत है ही नहीं। दर्शन पेख भय निर्बखई निर्भिखई, बिखई जहर, माया रूपी जहर, वकार रूपी जहर। दर्शन करके मनुख वकारां तो रहत हो जाता है, सुध ही नहीं रहिंदी माया दी वकारां दी। दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत हो, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, गत में ना गत है, पत में ना पत रही। भाई गुरदास कहते किसी अजली दुनिया का मनुख वसिंदा बन जाता है। वकारां वल ध्यान कित्थे जाता, फिर सुन अवस्था बन जाती, अफुर अवस्था, फुरने भी नहीं आते। भय निर्भिखई, बिल्कुल निर्विकार हो गए, निर्विचार हो गए। और जिवें ही निर्विकार निर्विचार होया ना, पाए हैं सगले थोक। थोक कहते एक प्रचून हुंदा, प्रचून दे विपरीत शब्द थोक हुंदा। सब कुछ थोक विच मिल गया जदों उहदे दीदार हो गए। पहली गल तो यह है भी जदों दीदार हुंदे ने ना, मंगां डिग पैंदियां। गुरु नानक साहब जदों दरगाह च गए ना दोबारा, तो कहते ने ढाडी को मंगण चित ना आवे। पहला बड़ा कुछ सोचा सी, इदां कवांगे, कहते जो सामने गए सब कुछ डिग पिया, कुछ नहीं चाहिए। की चाहिए कि थोड़ी निमरता की दात होर दे दे, सिमरन की दात होर दे दे। बाबा पहुंच पैदा सचखंड, 9 निध नाम गरीबी पाई। निमरता चाहिए, बाकी मंगा ही भुल गई, डिग ही पई। ये उदों तक ने जदों तक अवस्था नहीं बनी। दर्शन पेख भय निर्भिखई, पाए हैं सगले थोक। आन बस्त स्यों काज ना कछू है, सुंदर बदन अलोक। तेरे सुंदर बदन नूं, सुंदर मुखड़े नूं वेख के हुण किसी वस्तु नाल काम ही नहीं। तू मैनू दिस पवें, तू मैनू इन्ना को कह भी की हाल है, मैं समझा अज ते लखां ही कमा लैने। मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया। जांदियां जांदियां तू मेरे नाल आई कंटैक्ट बना के रब जी इन्ना ही कह दे की हाल है तेरा, मैं समझा अज ते लखां ही कमा लैने। हुण मंगना की है, हुण सब कुछ मिल गया। तू मिल गया,
सब कुछ मिल गया। हुण हजूर कहते ने आन बस्यों काज ना कुछ, होर वस्तुआं नाल मेरा काम ही कोई नहीं। की करनियां ने वस्तुआं? सुंदर बदन आलोक। इन्ना कुछ कह के पता की कहते, कहते जे फिर भी रब नूं कोई ना चाहे, फिर भी हरी तो बेमुख होया रहे, रब नूं ना चाहे तो ओदी पता की अवस्था है? श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुष्टी तन जो। रब नूं छड्ड के होर होर मंगां, डिमांड्स, ये बंदे दी हालत इस तरह है जिवें एक बंदे नूं कोड़ पिया है। कोड़ कदों पैंदा? जदों ब्लड गंदा हो जाता है। गंदा की हो जाता? लास्ट स्टेज ते सारा ब्लड पस बन जाता है, पाक बन जाता है, ਉਹਦਾ कलर भी थोड़ा जिहा ब्राउन जिहा टाइप होना शुरू हो जाता है, समैल मारदा गंदी। कहते इस तरह का होवे बंदा, उन्होंने कोड़ पिया होवे, कोड़ पिया होवे, रब करे किसी नूं ना पवे। ये बड़ी तकलीफ दिंदा है। जिहड़ा दीपालपुर वाला कोड़ी सी ना, नगर वाले दुखी होके ना एक रस्सी लैके एक भांडा मिट्टी का वो इस तरह गल च पा दिता उन्होंने, नगर तो बार बार एक छप्पर पा के उत्थे ही छड्ड आए, क्योंकि छूत की बीमारी सी। ये जिहड़े छोटे छोटे जरासीम ने हवा दे विच दूजे दे शरीर ते बह गए, उन्होंने भी कोड़ हो जाएगा। बार बार छड्ड आए, उच्ची उच्ची वरलाप कर, हाय मर गया, हाय मर गया, रब्बा मेरी जिंद कढ लै, हाय मर गया, इदू ते मौत चंगी। कोई नेड़े ना टुके। गुरु नानक साहब नूं आवाज़ आई, महाराज कहन लगे मरदाने चल पता लईए। उत्थे महाराज ने शब्द उच्चारण किया सी, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी। पता पक्का रोगी किनू कहंदे? जिन्हों कोड़ हो जाए उन्होंने पक्का रोगी कहंदे। सारी सारी रात हाय हाय करदियां लंघदी है इन्हां दी साध संगत, जिन्हां दा ध्यान सिमरन वाल नहीं, दुष्ट आत्मावां दी। हजूर कहते ने बंदा रब नूं छड्ड के होर होर मंगा मंगी तुरिया जाए, मंगी तुरिया जाए, मंगी तुरिया जाए, सबर ही नहीं। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जो। कोड़ी दे तन नूं जोक लगी हुई है ते उहदे तन चों लहू चूस रही है, ते लहू गंदा। हुण तुसीं वेखो किड्डी वड्डी झिड़क है मैनू ते तुहानूं सारिआं नूं, सांझी झिड़क। कदी आख्या भी वैगुरू तेरे दर्शन चाहिए ने, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, मैनू तू चाहिए। साडी मंग उल्टी शुरू होंदी, घर चाहिए, मोटर चाहिए, जॉब चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सब कुछ अपना एक राम पराया, सब कुछ अपना है, रब अपना नहीं गा। मुंडा मेरा, कुड़ी मेरी, घर मेरा, मोटर मेरी, दुकान मेरी, रब कहंदे नहीं, रब नहीं मेरा, उन्होंने तुसी लै जाओ, मैनू नहीं चाहिए। इस वास्ते हजूर कह रहे हैं श्याम सुंदर तज आन जो चाहत। रब जी नूं छड्ड के जिहड़े होर होर चीज़ां मंगदे ने, ज्यों कुष्टी तन जोक। अशके जाइए गुरु अर्जन साहब तुहाडी इस एग्जाम्पल तो, सदके जाइए, सानू तो औड़नी ही नहीं सी, ये ते तुसी रहमत कर दी। ज्यों कुष्टी तन जोक, सूरदास बचन गुरु अर्जन साहब का, पर क्योंकि सूरदास जी दे उस बचन की व्याख्या वजों है, इसलिए शब्द सूरदास इत्थे वरत रहे, नानक शब्द नहीं वरत रहे। सरलेख सारंग महला पंजवां है, इशारा दे दिता है, पर थले नानक की थां सूरदास शब्द है। भुलेखा ना लगे, मैं तां दस रहा, शब्द गुरु अर्जन देव जी का है, सूरदास जी का नहीं है। उन्हों की इतनी भी पंक्ति है, छाड़ मन हर बमुखन को सन। सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, प्रभु ने मेरा मन अपने हथां च ले लिया, हथां च। दीनो ए परलोक, मैनू ए लोक ते ओ परलोक, मेरे दोवें सवार दिते। पर कदों? जदों मैं अपना मन उहदे हथां च दे दिता। मैं समाप्ति करा एक शैक्सपीयर की छोटी जी गल ये नाल टुकदी तुहाडे नाल शेयर करके। शैक्सपीयर साहब ने एक
छोटी जी स्किट लिखी है, वैरोना दे दो साऊ। इंग्लिश च है, पंजाबी च ओहदा लत्था इदां बनदा। वैरोना दे दो साऊ नामक स्किट दे विच एक अमीर बंदा एक दूसरे अमीर दे नौकर नाल कोई डिस्कस कर रहा है, उन्होंने समझाता है, कोई गल समझाता, उन्होंने समझ नहीं आती, वो फिर समझाता है, उन्होंने फिर समझ नहीं आती। सिमरन किवें करिए ਜਾਂ सिमरन ਦੀਆਂ बरकतां नामी किताब विच प्रोफैसर साहब सिंह ने इस घटना का उल्लेख किया। मैं कित्थों लई है मैं भी तुहानूं दस दियां। 6-7 वार जो समझाता उन्होंने समझ नहीं आती। अमीर रता को खिज के कहता तू तो बहुता ही मूर्ख है। ये सधारण जी गल तो मेरे हत्थ में पकड़ी हुई सोटी नूं भी समझ आ गई है। पता नौकर की कहता है, वो कहता हजूर तुहाडी सोटी विच ते मेरे मन विच बहुत फर्क है। कहता की फर्क है? कहता सोटी तुहाडे हत्थ च, मन मेरा जिहड़ा तुहाडे हत्थ च नहीं गा, मेरा मन तुहाडे हत्थ च नहीं गा। सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, वो लै लवे ते असी मन उहदे हत्थां च दे दईए, फिर की होवेगा? दीनो ये इत्थे जिहड़ा ये है ईड़ी नूं इशारिया, ये दे अर्थ ने लोक। दीनो ये मैनू लोक भी दे दिता ते परलोक। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले माँ वाक अनुसार जीवन सफल हो जाए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। मैं धन्नवादी हाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिन्हों ने मैनू ये आग्या दी भी तुसीं इन्हां 12 भगत साहबान की बाणी की व्याख्या कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ प्रचारक भी हुक्म होया सी विज्ञानी जी ये बाणी भगतां की जिहड़ी है सारी तुसीं कथा करके रिकॉर्ड करके सानू दिओ, असी यूट्यूब पर चाढ़नी है। सो ज्ञानी बलविंदर सिंह मौजेवाल, ज्ञानी गुरचेतन सिंह हरियाओ, बग्गा साहब, होर सारे टरांटो वाले वीर, उन्हां वल्लों हुक्म सी लो वीरो ये 12 भगतां की बाणी की जिहड़ी तुसीं जिम्मेवारी मेरी लाई सी वो गुरु किरपा नाल प्रबंधकां दे सहयोग नाल संगत के सहयोग नाल पूरी हो गई है। हुण अगे जिवें जिवें हदायतां करदे जाओगे मैं उन्हां दे खरे उतरन का यतन करता रहांगा। अज इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। होइयां बेअंत भुलां गलतियां की खिमा बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।